Hello students, welcome to this channel Biology by Rajendra Parekh. I'm super excited today because it's my first video being recorded for this channel. Now students, if you look at the entire syllabus of biology subject for class 11 and 12, it comprises 10 units. And the first unit of them is diversity in the living world. Now this unit itself has 4 chapters, and the first of them is the living world. The second one is biological classification. Third is plant kingdom, and fourth is animal kingdom. Now in these 4 chapters they have tried to make you familiarize with all different types of living organisms present on this planet. Now students, if you look at this living world, you can see that there are all different types of living organisms around us and they are quite amazing. Okay, so this type के कुछ sentences आपकी book में दिए हुए हैं. The living world is amazing and there is a wide range of living types and we find living organisms in variety of habitats, right? So what? Now students, when we look around us, we find large variety of living organisms living in different habitats and it's amazing. But students, when we look at them, okay, it makes us to think deeply about what is life, right? So the same thing has been mentioned here that such rich variety in the living world makes us deeply reflected on what is life. Life kya hai? Now students, this question itself has two implicit questions. मतलब कि एक question में दो questions हैं. The first of them is philosophical one and the second one is scientific one. Now philosophical question की बात करें, it asks us about the purpose of life. Life क्या है? Life का purpose क्या है? Now there could be different answers from different individuals. Okay? कि life क्या है? औरों की सेवा करना इसका मतलब है लाइफ, पैसा कमाना इसका मतलब है लाइफ, खा पी के मजा करना इसका मतलब है लाइफ. तो हर किसी की थिंकिंग अलग अलग हो सकती हैं, हर किसी के लिए लाइफ के मायने अलग अलग हो सकते हैं. सो इट्स अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन. Okay, but being scientists or students of science, we will reflect on the second question, which is more or less technical, and it asks about what is life or living opposed to non-living. Okay students, now students, आपकी जो नई टेक्स्ट बुक हैं, राइट, तो उनमें कुछ टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं. Some topics have been removed and this topic is one of them. लेकिन ये जो टॉपिक है वेरी बेसिक है और ये अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना ज़रूरी है. ऑफ कोर्स हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन सुपरफिशियली हम इस टॉपिक को स्टडी कर लेंगे. राइट स्टूडेंट्स, सो द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ लिविंग. पे जिंदा होना मतलब क्या है. इनकी कंसर्न ये है स्टूडेंट्स कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी नॉन लिविंग थिंग का स्टडी स्टार्ट कर दो. आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो. बायोलॉजी मीन्स बायोस प्लस लोगस, ग्रीक वर्ड से बना है बायोलॉजी. ओके, दो वर्ड से बना है, बायोस प्लस लॉगस. तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी स्टार्ट कर दो लिविंग के बजाय. आप कहोगे सर इतने तो हम मूर्ख नहीं हैं, वो तो पता चल जाता है. नो स्टूडेंट्स, वायरसेस अभी भी लटके हुए हैं. Scientists still are confused, okay, are not very sure at least whether they should be considered as living or non-living. At least we consider them as connecting links between living and non-living, right? तो साइंटिस्ट डेफिनेशन में मानते हैं, ओके, थिंग्स को डिफाइन करने में मानते हैं. वो थ्री इडियट वाला नहीं, मशीन क्या होता है, ओके, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत है, वो मूवी था, ठीक है. तो जब भी हम लिविंग थिंग को डिफाइन करने की कोशिश करते कि भाई व्हाट इज़ लिविंग अपोज टू नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, वी यूजुअली ट्राई टू फोकस ऑन डिफरेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वो क्या है जो लिविंग थिंग्स करती है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती. Okay, so here there is a short list of some such characteristics. Okay,
First is growth, the second one is reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. Now students, इन प्रॉपर्टीज को हमें वन बाय वन समझना है, ओके और लास्ट में हमें ये भी सोचना है कि आर दिस प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग और नॉट, ओके तो हर एक के बारे में हम अलग अलग सोचेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, देखने में तो ये सिंपल लगते हैं आपको, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन पता होगा आपको शायद, मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, तो ये सारा हमें समझ में आता है, तो फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? नहीं स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझ लो। चलो एक के बाद एक हम कोशिश करते हैं। ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास, दैट इज ग्रोथ, ओके यू आर राइट। जैसे कि कोई बच्चा होता है, मैं 3 kg का था आज से 50 साल पहले जब मेरा बर्थ हुआ था, राइट, लेकिन अभी 3 kg नहीं हूँ, ओके आप गेस कर लो, राइट, लेकिन हम ग्रो होते हैं, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस individuals of their own kind, okay, and that ability, that process is called reproduction। ये definition भी आपने पढ़ी हुई है, right? हमें ये सोचना है कि क्या इन एबिलिटीज़ के बेसिस पे हम श्योरली कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लिविंग या नॉन लिविंग है, मीन्स आर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ देम। चलो ग्रोथ के लिए सोचते हैं। अच्छा ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, बट देर आर सो मेनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो दैट एग्जिबिट ग्रोथ, तो फिर आप उनको भी क्या लिविंग कहोगे? देर आर सो मेनी बोल्डर्स, ओके पत्थर जो होते हैं, boulders, they do grow, they accumulate substances from the atmosphere or surrounding and they do grow। तो क्या आप उन्हें ग्रोथ मतलब कि आप उन्हें लिविंग थिंग कहोगे, राइट? सो ऐसा नहीं है कि जो ग्रो करेगा वो लिविंग है, नहीं करेगा वो लिविंग नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन लिविंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। सो ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ओके ये निर्णायक फीचर नहीं है। Similarly, reproduction, of course, no non-living object we find that can exhibit reproduction, okay? तो non-living things में reproduction नहीं होता है, ठीक है, but there are so many living organisms that don't reproduce at all, right? There are so many interesting examples, okay? Some of them given in your was given in your NCERT book, okay? Honeybees, right? Actually they have literally caste system, different types of individuals in the colony, okay? And worker bees जो एक टाइप की फीमेल होती हैं, okay? वे सिर्फ पैदा होती है और मर जाती हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करती, दे डोंट रिप्रोड्यूस एट ऑल। रिप्रोडक्शन कौन करती है? जो क्वीन होती है, फीमेल ही होती है लेकिन क्वीन होती है, राइट? तो क्या आप उन वर्कर हनी बीज को नॉन लिविंग कहोगे बिकॉज दे डोंट रिप्रोड्यूस? नहीं, दे आर लिविंग, राइट? सिमिलरली म्यूल्स, जो हम हॉर्स और डोंकी के बीच में मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप करते हैं, दे आर ऑल्सो इनफर्टाइल, दे कांट रिप्रोड्यूस, तो क्या आप उन्हें भी नॉन लिविंग कहोगे, राइट? सम अनफॉर्चुनेट ह्यूमन कपल्स, राइट, जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं, क्या उन्हें आप नॉन लिविंग कहोगे? सो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस you can't define living thing, right? So growth and reproduction are not defining features of living things, right? एक और बात है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में, जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, इट इज़ नॉट क्लियर, वी आर नॉट वेरी श्योर इवन एट द मोमेंट अबाउट द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ दैम। सपोज आप अमीबा देख लो, अमीबा, सपोज एक इंडिविजुअल अमीबा है, ओके, और उसका सेल डिवाइड हो जाता है, एक से बन गए 2 सेल्स, क्या कहोगे आप इसे, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन? हम तो जब ग्रो होते हैं हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, राइट? अभी इनके सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल बढ़ गए, तो आप इसे क्या कहोगे, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन? क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है तो 1 से 2 अमीबा बन जाते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन भी हो गया।
अगर ये रिप्रोडक्शन है तो फिर उनका ग्रोथ कहाँ है, और अगर आप इसे ग्रोथ कहोगे तो फिर रिप्रोडक्शन कहाँ है, right? Whereas for multicellular organisms, growth and reproduction are mutually exclusive event. Growth growth है, reproduction reproduction है. किसके लिए? Multicellular organisms के लिए. But for unicellular organisms, growth and reproduction are synonymous. So we are not very much sure about the usage of these terms in case of यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो जब हमें पता ही नहीं है ग्रोथ क्या है और रिप्रोडक्शन क्या है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसने ग्रोथ किया या नहीं किया, ये लिविंग है या नहीं है. सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स. हाँ, मेटाबॉलिज्म, cellular organization, consciousness are certainly defining features. Now, what is metabolism? शायद आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ. मेटाबॉलिज्म एक्चुअली दो वर्ड से बना है, राइट? एक्चुअली बॉडी में जो प्रोसेसेस होती हैं दो टाइप की होती हैं. चलो पहले से शुरू करते हैं. रिएक्शन जो होती है अलग अलग टाइप की होती हैं. उनमें से कुछ होती है केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में होती हैं उन्हें हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस. Now, any biochemical reaction occurring in living body, okay, is either anabolic or catabolic. Anabolic means building up process, synthetic process, कुछ बनना, and catabolic reactions are breaking down processes, okay, जिसमें कुछ ना कुछ degrade होता है, टूटता है, right? There are some very good examples for both of these. For example, photosynthesis is an anabolic process. कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वाटर जुड़ करके ग्लूकोज बनता है, राइट? और कैटाबोलिक रिएक्शन, द सेम ग्लूकोज गेट broken down into carbon dioxide and water again during respiration. So photosynthesis is building up process and respiration is breaking down process. So photosynthesis is anabolic reaction, respiration is catabolic reaction, and such reactions together are called metabolic reactions, and all metabolic reactions occurring in a system or living body is called metabolism. Okay, now living organisms exhibit मेटाबॉलिज्म. लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, राइट? सो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स. बट स्टूडेंट्स, अगर एक टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब में आप स्टार्च पाउडर डाल दो, आपका सलाइवा थोड़ा डाल दो, और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा उसे हीट कर दो, तो स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब स्टार्च का डाइजेशन हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया. तो क्या आप उसे भी, टेस्ट ट्यूब को भी लिविंग थिंग कहोगे? नहीं ना. तो फिर एक और चीज़ जोड़ना ज़रूरी बन जाती है, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन. लिविंग थिंग्स सेल से बनी हुई होती है. और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि वायरसेस अभी भी लटके हुए हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दे डोंट हैव सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, दे डोंट हैव सेल स्ट्रक्चर. They are just made up of proteins and nucleic acids, if you know about them, right? So they don't have cellular organization, and और इसी वजह से हम उन्हें living thing नहीं कहते हैं. But living things, they have cells, okay? And consciousness. Consciousness, students, we all are aware of our surrounding. We living organisms. अगर आपसे कोई पूछेगा आज कौन सा डे है, आप बता दोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे कौन सा है, ओके? अभी कौन सा मंथ चल रहा है, आप भी बता दोगे, जनवरी, फरवरी, कुछ भी, ओके? मेरा नाम क्या है, आप बता दोगे, राजेंद्र पारेख. आपका नाम क्या है, आप बता दोगे. आप कहाँ बैठे हो, आपको पता होगा. दिन है कि रात है, आप बता दोगे. लेकिन इस कैमरा से अगर मैं पूछता हूँ कि भाई अभी दिन है या रात है, वो आंसर नहीं देगा. सो वी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग, राइट? देर आर सो मेनी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, लेकिन इस वीडियो में हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे. लेकिन प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, फंगी, बैक्टीरिया, okay, like microbes, they all are aware of their surrounding. They can sense their surrounding and mount suitable response, okay?
अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज कौन सा डे है, आप सुनते हो, ओके, यू सेंस योर सराउंडिंग एंड माउंट सुटेबल रिस्पॉन्स, आप बोलोगे मंडे ट्यूसडे कुछ ना कुछ, एंड दिस एबिलिटी इज विथ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट्स जो होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि अभी कौन सी सीज़न आ रही है और अकॉर्डिंगली फ्लावर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, आपको पता होगा शायद कि लॉन्ग डे प्लांट्स दे रिक्वायर लॉन्गर पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट फॉर फ्लावरिंग। अकॉर्डिंगली शॉर्ट डे प्लांट्स, तो उन्हें वे कौन सी घड़ी में देखते हैं कि कितने घंटे लाइट रहेगी, दे कैन सेंस their सराउंडिंग। और अगर अप्रोप्रिएट लाइट नहीं मिली, दे रिस्पॉन्ड बाय नॉट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, and if available light means a period of light is there, they flower. So they can sense their surrounding and mount suitable response. Okay, microorganisms like amoeba, bacteria, fungi, they also can sense their surrounding. Okay, so these are some characteristics, distinctive characteristics of living organisms, and some of them are defining, some others are not. ओके, ये जो पोर्शन था स्टूडेंट्स आपके नई बुक से निकाल दिया गया है, लेकिन ये डिस्कशन थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि अगर लाइफ क्या है यही आपको पता नहीं है तो आप इवोल्यूशन कैसे पढ़ोगे, क्योंकि लाइफ इवॉल्व होती है, लिविंग थिंग इवॉल्व होता है, राइट। तो जब हम इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, तब आपको समझना होगा कि पहले तो लाइफ कैसे एग्जिस्टेंस में आई। अगर आपको लाइफ क्या है पता ही वही पता नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि हाँ ये लाइफ हो गई, लाइफ बन गई। लाइफ एक्चुअली इज सम टोटल ऑफ सम एबिलिटीज, ओके, एबिलिटी टू ग्रो, ability to reproduce, ability to carry out metabolic activities, ability to sense your surrounding and mount suitable response. And if any object having these properties is made up of cells, you can call it a living thing. Okay, anyway students, now this title actually is the same as the title of entire unit made up of 4 chapters, diversity in the living world. आपने बहुत सुना होगा स्टूडेंट्स इस वर्ड के बारे में, डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो इसी वर्ड को हम थोड़ा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको समझना होगा। व्हाट इज डाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? देखिए स्टूडेंट्स, मैं कई बार फॉरेस्ट में जाता रहता हूँ, और जब लौटता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि आपने क्या क्या देखा, कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं, राइट। मुझे, मेरा जूलॉजी सब्जेक्ट था, मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं फॉरेस्ट की विज़िट करता रहता हूँ। तो लोग मुझे पूछते हैं कि आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे, तो मैं कहता हूँ बहुत सारे एनिमल्स देखे मैंने। तो कहते हैं हम तो जाते, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, आपने बहुत सारे एनिमल्स कैसे देख लिए, कौन कौन से एनिमल्स देखे आपने? तो मैं मजाक में कहता हूँ मैंने बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं, एक था एलिफेंट, अच्छा, और दूसरा 2 एलिफेंट थे एक्चुअली, वो मैंने देखे, और पीछे थोड़ा दूर एक और एलिफेंट था, वो भी मैंने देखा। तब तक तो बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर बोलते और क्या देखा, तो मैं कहता और एक एलिफेंट था, आ रहा था दूर से। फिर वो चिल्ला पड़ते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मतलब लायन, टाइगर, ऐसे कितने देखे हैं। आप समझे कुछ? तो ये जो क्वेश्चन वे पूछना चाहते हैं ना, वे पूछना चाहते हैं आपने कितनी स्पीसीज देखी, स्पीसीज देखी, ठीक है। तो ये स्पीसीज हैं लायन, टाइगर, एलिफेंट, जो हम नाम यूजुअली बोलते हैं, बताते हैं कि भाई क्या क्या देखा, आप जू में गए, किसी ने पूछ लिया क्या क्या देखा, तो आप बोलोगे मैंने लायन देखा, टाइगर देखा, तो एक एक ही था? नहीं, लायन थे, टाइगर्स थे, तो लायन एक स्पीसीज है, टाइगर एक स्पीसीज है, तो ये है स्पीसीज। अदरवाइज स्पीसीज की डेफिनेशन इस चैप्टर में भी आगे आने वाली है, और इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीसीज क्या होता है वो भी हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, राइट। बट अभी के लिए स्पीसीज क्या है, तो all different kinds of plants, animals, or you can say organisms that we see represent a species, मतलब कि lion, tiger, okay, ये सारे क्या है, एक एक species हैं, राइट। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी की,
बायोडाइवर्सिटी की। तो कितनी है बायोडाइवर्सिटी, राइट? नाउ स्टूडेंट्स बी केयरफुल, बायोडाइवर्सिटी कितनी है मतलब वो तो हैबिटेट पे डिपेंड करता है, और मतलब कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड और अर्थ, बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ अगर हम बात करें मतलब पूरे प्लेनेट पर कितने अलग अलग स्पीसीज हैं, तो वो बताया गया कि 1.7 टू 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख स्पीसीज इस प्लेनेट पर हैं, राइट? अगेन ये 17 से 18 लाख जो है 1.7 टू 1.8 मिलियन जस्ट नोन स्पीसीज के बारे में है, ओके? Otherwise there are so many other species, okay, on this planet, but we don't know about them. इनफैक्ट साइंटिस्ट ने एक लिस्ट बनाना स्टार्ट किया है, और उस लिस्ट में जो इंक्लूड हो गया वो हो गया नोन स्पीसीज, ओके, बाकी सारे अननोन। ठीक है, तो ऐसे नॉन स्पीसीज कितनी हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन। कहाँ पर? इस पूरे प्लैनेट पर। ठीक है, अदरवाइज बायोडाइवर्सिटी इस वर्ड को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर फॉरेस्ट, ओके, सम पर्टिकुलर फॉरेस्ट इज वेरी रिच in its biodiversity. Amazonian rainforests are popular for its richness of biodiversity. Deserts usually have very poor biodiversity. आप समझे? मतलब biodiversity means number of species of living organisms found in any particular habitat or area. Okay, so बायोडाइवर्सिटी हो गया। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज लिविंग, और ऐसे लिविंग स्पीसीज कितनी हैं, राइट? तो आंसर मिल गया 1.7 टू 1.8 मिलियन नोन स्पीसीज हैं। इनके बारे में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े सेट हो जाओगे और पढ़ने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की आप जब शुरुआत करोगे, उस टाइम पे मैं कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करवाऊंगा, क्योंकि कहते हैं ना, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म। आपका जो बायोलॉजी का पूरा सिलेबस है स्टूडेंट्स, यहीं से शुरू होता है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और ख़त्म जो होगा 12th स्टैंडर्ड में वो भी डाइवर्सिटी से ही ख़त्म हो, बायोडाइवर्सिटी से ही ख़त्म होगा। एक्चुअली लास्ट चैप्टर जो है आपका 12th स्टैंडर्ड का वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो बायोडाइवर्सिटी हैं वो कम होती जा रही है और हमें इसे बचाना है। तो कितनी है, क्या है, बायोडाइवर्सिटी एग्जैक्टली क्या है, ओके, ये सारा हम उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। नाउ स्टूडेंट्स, ऊपर वाले ने हमें इतनी सारी अलग अलग तरह के प्लांट्स स्पीसीज दी है, प्लांट्स एनिमल्स दिए हुए हैं, राइट? ये अच्छी बात है, ओके। कितनी? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज, आप थोड़ा सोचो। तो ये एक अच्छी बात है कि नहीं? डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन देर आर सर्टेन इश्यूज एसोसिएटेड विथ दिस बायोडाइवर्सिटी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ओके, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। कहते हैं कि इट वुड बी इम्पॉसिबल टू डील विद दिस इनॉर्मस डाइवर्सिटी इफ इट वेर नॉट ऑर्डर्ड एंड क्लासिफाइड। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, और क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, राइट? मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्लासिफिकेशन कैसे हमें हेल्पफुल होता है, और अगर क्लासिफिकेशन नहीं होता तो क्या होता। मतलब कि दो तीन चीज़ें मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी हैं, हमें यूज़ करने के लिए ऊपर वाले ने गिफ्ट की हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर हम इस पूरी बायोडाइवर्सिटी को, सारी स्पीसीज़ को हम अगर प्रॉपरली ग्रुप्स में अरेंज ना करें, तो वी इवन कांट टॉक अबाउट दैम कन्वीनियंटली।
मान लो कि आप कहीं टेरेस पर गए और आपने कोई अच्छा सा बर्ड देखा। आप दौड़ते हुए नीचे आए, सबको बताने लगे कि चलो चलो ऊपर मैंने एक बहुत बढ़िया बर्ड देखा। ओके, आप ऐसे बात करते हो कभी कभी। मानो कि साइंटिस्ट ने इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड ही नहीं किया होता, मतलब कि मैमल्स, बर्ड्स, इवन एनिमल्स, प्लांट्स, तो क्या होता? आपने ऊपर बर्ड देखा, आपको यही बोलना पड़ता नीचे आकर के कि मैंने ऊपर एक बहुत बढ़िया लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा। तो फिर आप दौड़ते हुए जाओगे सब, वो पंछी तो उड़ गया। फिर वो लोग पूछेंगे कैसा था लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कैसा था? ओके, चार पैर वाला था। ओके, कैसा था? तो आप नाम भूल गए हो। मानो कि आप नाम भूल गए हो, अरे कुछ नाम अच्छा ही है उसका, मैं नाम भूल गया, क्योंकि बहुत सारे नाम हो गए ना, तो आपको सबके नाम याद नहीं रहेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, कई बार तो हमें पूरे सब स्टूडेंट्स के नाम याद नहीं रहते हैं, राइट? तो वैसे आप नाम भूल गए और आप बताना चाहते हो कि आपने कौन सा ऑर्गेनिज्म देखा था, तो कम से कम आप इतना तो बोल पाओगे कि मैंने एक बर्ड देखा। बर्ड, बर्ड कब बोल पाओगे आप? जब किसी ने एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं कि भाई बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, तो आप इतना तो बोल पाओगे ना। हाँ, तो लोग बोलेंगे हाँ 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 कैसा था? आप बोलोगे इतना छोटा था, ये वाला कलर था, तो बोलेंगे हाँ 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 मैंने भी एक दिन देखा था। तो सबको आइडिया हो गया कि भाई ये कौन सा ऑर्गेनिज्म इस बंदे ने देखा था, राइट? अगर क्लासिफिकेशन ही नहीं किया है तो फिर आपको उसका नाम ही बोलना पड़ेगा, और नाम भूल गए तो फिर आप बात ही नहीं कर पाओगे उनके बारे में। तो ये एक सीधा बेनिफिट है कि क्लासिफिकेशन करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ टेक्निकली देखें तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम किसी चैप्टर में आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है, राइट? तो इसको मैनेज कैसे करेंगे? इस पूरी डाइवर्सिटी के बारे में, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कितने हैं, कौन कौन से हैं, इसका डेटा तो आपको रखना पड़ेगा, और सबको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ग्रुप्स को नाम देने पड़ेंगे। ओके, ये सारा झमेला आपको करना होगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसा है। ये प्रॉब्लम कैसा है, कौन सा? जो ऊपर वाले ने हमें इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, इतनी सारी स्पीसीज यूज़ करने के लिए दी है, राइट? एक्चुअली यूज़ करने के लिए तो नहीं दी है, हम यूज़ करते हैं, राइट? तो एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। मान लो कि आपको किसी ने एक गिफ्ट भिजवाई। ओके, अभी गिफ्ट देखना कि कैसी हैं। मान लो कि चाइना के किसी बिग बाजार जैसे सुपर मार्केट, सुपर मॉल का पूरा सामान आपके घर के बाहर रख दिया कि जाओ, ये आपको मैंने गिफ्ट किया। तो ये खुशी की बात है, इतने सारे आर्टिकल्स, इतनी सारी चीज़ें हमें गिफ्ट में मिली हैं। लेकिन उसी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी जुड़े होंगे। आपको नींद ही नहीं आएगी, रात को आधा सामान चोरी हो जाएगा, बारिश आ गई तो भीग जाएगा, कुछ सामान एक्सपायरी डेट का होगा, आप उसको ठिकाने लगाओगे उससे पहले ही वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो सेम वे, अगर बायोडाइवर्सिटी इतनी सारी हैं, राइट? मैंने चाइनीज़ मार्केट का नाम इसीलिए लिया क्योंकि चाइनीज़ में वैसे तो आइटम्स में नाम लिखा होता है, लेकिन चाइनीज़ में लिखा है तो ना लिखा के बराबर है। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है? तो उनके ऊपर, इनके उनके बॉडीज़ के ऊपर नाम नहीं लिखे, तो आपको पहचानना है उनको, उनको फिर ग्रुप्स में डिवाइड करना है, राइट? तो कंडीशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी वही है कि बहुत सारे वो सामान की तरह आपको बहुत सारे गिफ्ट तो किए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है, इसका क्या यूज़ है। ओके, कितने थे, कितने बचे हैं, कौन एक्सपायर एक्सटिंक्ट हो रहा है, मतलब, राइट? तो ये जो डाइवर्सिटी हमें गिफ्ट की गई है, उसको अगर प्रॉपरली यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे मैनेज करना पड़ेगा। और इसी पर्पस के लिए एक ब्रांच बायोलॉजी की डेवलप की गई है जिसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। ओके, क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। नाउ स्टूडेंट्स, इस टैक्सोनॉमी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पहले हम जान लेते हैं, और फिर लास्ट में हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। द वर्ड टैक्सोनॉमी इज derived from two Greek words, taxis and nomos, where taxis means arrangement and nomos means laws.
Means taxonomy is about arrangement of living organisms according to some accepted laws or rules. Okay, this term was coined by scientist APD Condorcet in the year 1813, right? And many definitions have been given to describe or explain this word. बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन फिलहाल हमें इन डेफिनेशंस में नहीं पढ़ना है, राइट? सभी सही हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल नहीं पढ़ना है। ये कुछ ऐसा है जैसे एजुकेशन की डेफिनेशन देनी हो तो महात्मा गांधी अलग से देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर अलग से देंगे। ओके, हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। तो डेफिनेशन में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है वो हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है? सो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, all living organisms can be classified into different taxa, and this process of classification is taxonomy. तो ये आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, all living organisms can be arranged into different taxa, and this process of classification is taxonomy. तो स्टूडेंट्स, एक वर्ड आ गया टैक्सा, एक्चुअली इज अ प्लूरल वर्ड, सिंगुलर इज टैक्सॉन। इस वीडियो में बाकी बचा जो डिस्कशन है, हम दो ही वर्ड्स के बारे में करने वाले हैं, एक है टैक्सॉन और दूसरा है रैंक। एक टैक्सॉन और दूसरा रैंक। नाउ स्टूडेंट्स, इन दो वर्ड्स को समझने के लिए मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ और आपको अच्छे से पहले देख लेना है। एक्चुअली यू नो एवरीथिंग, बट आपको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है। से ह्यूमन पॉपुलेशन, इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल थिंग, ओके, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, राइट, तो आप उन्हें इमेजिन कर सकते हो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड। जैसे कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, तो ऐसे सारे कॉन्टिनेंट्स पे ह्यूमन पॉपुलेशन है, राइट? सो यू कैन इमेजिन ह्यूमन पॉपुलेशन डिवाइडेड इन अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट्स। फिर कॉन्टिनेंट्स में होते हैं कंट्रीज़, जैसे कि एशिया एक कंट्री है, तो एशिया में है, सॉरी, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, तो इसमें है कुछ कंट्रीज़ लाइक इंडिया, नेपाल, चाइना, राइट? फिर कंट्री में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंट्री में होते हैं स्टेट्स, जैसे कि इंडिया में हो गया गुजरात, असम, केरला। फिर स्टेट्स में क्या होता है? सिटीज़ होते हैं, टाउन्स होते हैं। तो मान लो गुजरात में हो गया सूरत, राजकोट, वलसाड़, सम वेरी गुड सिटीज़, ओके। और सूरत सिटी पर्टिकुलर, उसमें हर एक सिटी में एरियाज़ होते हैं। सूरत सिटी के एरियाज़ अगर आप देखो तो जैसे एक है अडाजन, फिर हो गया उधना, वराछा, ओके, सम वेरी गुड एरियाज़। और हर एक एरिया में होती हैं सोसाइटीज़, वैसे अपार्टमेंट्स भी होते हैं लेकिन हम कहते हैं उन्हें हाउसिंग सोसाइटीज़। तो मान लो एरियाज़ में है सोसाइटीज़, तो अडाजन में जैसे कि है जोगानी नगर, फिर हो सकती है गंगा नगर, कुबेर नगर। तो एरिया में होती है सोसाइटी और सोसाइटी में होते हैं बंगलो नंबर। एक बार फिर से देख लो, कॉन्टिनेंट्स में होते हैं कंट्रीज़, कंट्रीज़ में होते हैं स्टेट्स, स्टेट्स में होते हैं सिटीज़, सिटीज़ में होते हैं एरियाज़, एरियाज़ में होते हैं सोसाइटीज़ और सोसाइटीज़ में होते हैं बंगलोज, राइट? नाउ इस पूरे किस्से में आप इस तरफ वाले कोई भी ब्लॉक को देख लो, ओके। ये ग्रुप है, जैसे कि एशिया एक ग्रुप है, यूरोप इज ऑल्सो अ ग्रुप, ये भी एक ग्रुप है, अफ्रीका इज ऑल्सो अ ग्रुप, बट एट द सेम टाइम इंडिया इज ऑल्सो अ ग्रुप, small group, a part of this big group, but all these are groups. So the scientific word for this group is taxon. So all these are taxa. All these are taxa. ठीक है? Now rank कौन से है तो फिर? These are ranks. Okay? ये जो है ये सारे रैंक्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे रैंक्स हैं। मतलब कि कॉन्टिनेंट एक रैंक है, कंट्री एक रैंक है, likewise state, city, area, society, number, there is bungalow number, these are ranks.
मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, आपको आंसर देने हैं, आपको समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश क्या है? इट्स अ ग्रुप, इट्स अ टैक्सॉन। लेकिन उसका लेवल कौन सा है, कौन से लेवल का, कौन से रैंक का वो ग्रुप है? स्टेट, राइट। सिमिलरली सूरत, तो वो क्या हो गया? इट्स अ ग्रुप, इट्स अ टैक्सॉन। लेकिन सूरत है क्या? इट्स अ सिटी, राइट। तो टैक्सॉन, दैट इज टैक्सा एंड रैंक्स। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द सेम वे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, टैक्सा में डिवाइड करते हैं, देखते हैं ऑफ डिफरेंट रैंक्स। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप कुछ बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, बड़े बड़े ग्रुप्स में। जैसे कि एक हो गया एनिमेलिया, दैट इज एनिमल्स, फिर प्लांटी, फंगी, राइट। तो ये क्या हो गए? ग्रुप्स, दैट इज टैक्सा। तो एनिमेलिया क्या है? एक टैक्सॉन है, राइट, लेकिन बहुत बड़ा है, ऊपर वाले लेवल का है। तो जैसे आगे वाली स्लाइड में हमने कहा था कॉन्टिनेंट, वो उसका रैंक था, एशिया का रैंक कौन सा था? कॉन्टिनेंट। वैसे ही एनिमेलिया अपर लेवल का ग्रुप है, तो उसका रैंक क्या होगा? किंगडम। तो हमारे वाले एग्जाम्पल में, आगे वाले एग्जाम्पल में, जैसे कॉन्टिनेंट से लेकर के बंगलो नंबर तक क्या थे? सारे रैंक्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। वैसे ही बायोलॉजी में कुछ रैंक्स यूज़ किए जाते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और ये रैंक्स क्या है, आप एक बार सुन लो। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऑफ कोर्स प्लांट्स के केस में फाइलम के बजाय हम यूज़ करते हैं डिवीजन, ठीक है। तो रैंक्स कौन से हो गए? किंगडम, फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। 7 रैंक्स हो गए। ये स्टैंडर्ड रैंक्स है, स्टैंडर्ड कैटेगरीज हैं। टैक्सोनॉमिक रैंक्स को आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कहते हो। आगे चैप्टर में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन आने वाला है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और मतलब कि टैक्सोनॉमिक रैंक्स का विथ एग्जांपल्स। ये सिर्फ मैं आज के इस लेक्चर में आपको टैक्सॉन और रैंक का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर करना चाहता हूँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, राइट। तो आगे वाले एग्जांपल में भी टैक्सा थे और रैंक्स थे। कॉन्टिनेंट से लेकर के बंगलो नंबर तक वो क्या थे? रैंक्स थे। और यहाँ पर जो थे नेपाल, चाइना, आंध्र प्रदेश, जोगानी नगर, बंगलो नंबर 3, तो ये सारे क्या थे? टैक्सा थे, ठीक है। और वैसे ही एक्चुअल क्लासिफिकेशन में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो होते हैं उनमें भी क्या यूज़ किए जाते हैं, क्या किया जाता है? ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में, मतलब कि टैक्सा में डिवाइड किए जाते हैं, और हर एक टैक्सॉन किसी पर्टिकुलर रैंक का होता है, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख लो, इस तरफ ये जो सारे हैं ये क्या हैं? टैक्सा हैं। और इस तरफ क्या बताए गए हैं? उन टैक्सा के रैंक्स बताए गए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि इन टैक्सा और रैंक्स के बारे में जानना इतना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक इंसिडेंस आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे कई बार होता है कि हम कहीं घूमने गए, मान लो कि आप एब्रॉड चले गए, कहीं पर एफिल टावर पर आप खड़े हो और आपसे कोई मिल गया, आपके जैसे दिख रहा है, इंडियन जैसे दिख रहा है। आपने पूछ लिया, आर यू इंडियन? वो बोलेगा यस। तो आप तुरंत बोलोगे कौन से पार्ट से, इंडिया के कौन से पार्ट से? लैंग्वेज बदल जाएगी। ओके, अगर बोल दिया उसने कि गुजरात, सो बात करो छो, गुजराती छो, आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, आपकी खुशी का लेवल बदल जाएगा, राइट। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे के रैंक पर आते हो, कॉन्टिनेंट से स्टेट या सिटी की तरफ, आपकी खुशी क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि आप में सिमिलैरिटीज़ होंगी।
आपके जो तौर तरीके होंगे उनमें सिमिलरिटीज़ होंगी, तो आप एक दूसरे को अच्छे से समझ लोगे और हो सकता है कि आप फ्रेंड्स बनो, फ्यूचर में कहीं पर आप म्यूचुअली यूज़फुल हो पाओ, राइट? तो आप ये चीज़ देखते हो कि जैसे आप कॉन्टिनेंट से बंगलो नंबर तक आओगे, ऑफ कोर्स एक बंगलो नंबर वाले में तो इंटीमेसी ज़्यादा ही होगी, होती है क्या? तो ज़्यादा ही होगी, राइट? तो क्या होता है, इंटीमेसी बढ़ती जाती है, सिमिलैरिटी बढ़ती जाती है, तो वही चीज़ क्लासिफिकेशन में भी होता है। जैसे आप किसी एक किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को ले लो, किसी एक किंगडम के सारे एनिमल्स, तो डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे, राइट? जैसे कि एलिफेंट भी आ गया उसमें, चूहा भी आ गया, एक ही किंगडम एनिमेलिया, राइट? लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे, तो एनिमेलिया क्या है स्टूडेंट्स? एक टैक्सॉन है, लेकिन उसका रैंक कौन सा है? किंगडम। तो किंगडम रैंक का जो ग्रुप होगा ना, अपर लेवल का है, तो उसमें सिमिलैरिटीज कम होगी। जैसे जैसे आप नीचे आओगे, सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएगी, राइट? जैसे कि कॉर्डेटा, कॉर्डेटा एक टैक्सॉन है, देख लो, एनिमेलिया के नीचे है, एक टैक्सॉन है, तो यहाँ पर सिमिलैरिटी एनिमेलिया से ज़्यादा होगी। यहाँ पर अर्थवर्म निकल गया, ओके, स्टारफिश निकल गई, लेकिन मंकीज अभी भी यहाँ पर हैं, राइट? फिश इज यहाँ पर है, लेकिन और नीचे आओगे तो फिश भी निकल जाएगी, बर्ड्स भी निकल जाएगी, मैमेलिया मतलब एनिमल्स विथ मेमोरी ग्लैंड्स ही रह जाएंगे। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे क्या होगा, सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएंगी, राइट? तो अभी आप सुनो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया, समझो कि एक ऑर्केस्ट्रा मैंने विजिट, मतलब कि एक ऑर्केस्ट्रा थी जिसके कुछ मेंबर्स से मैं मिला था, ओके, और उस ऑर्केस्ट्रा में कुछ 10 मेंबर्स थे, और उनमें से 7 जो थे वो एक ही टैक्सॉन के थे, मतलब ग्रुप के थे, रूपनगर। तो आप सोच में पड़ जाओगे कि रूपनगर है क्या, कोई सिटी है, स्टेट है? अगर एक स्टेट है तो एक स्टेट के साथ हो सकते हैं ना मेंबर्स एक ऑर्केस्ट्रा में, लेकिन अगर रूपनगर एक सोसाइटी है, तो एक ही सोसाइटी के 7 मेंबर्स है वो पूरे ऑर्केस्ट्रा में, और बाकी जो 5-7 जो 3 बचे वो पूरे देश से, वो तो ताज्जुब की बात है। तो आप पूछोगे कि रूपनगर क्या है? रूपनगर जो मैंने बताया वो क्या नाम है, नेम ऑफ द ग्रुप है, दैट इज टैक्सॉन का नाम है। मुझे बताना होगा साथ में कि ये जो ऑर्केस्ट्रा है इसमें 10 मेंबर्स है, उसमें से 7 एक ही हाउसिंग सोसाइटी के हैं। तो हाउसिंग सोसाइटी क्या हो गया, रैंक हो गया। मैंने रूपनगर बताया तो समझ में नहीं आया, आपको क्लियरिटी नहीं आई, लेकिन जब मैंने बताया कि रूपनगर सोसाइटी, तो आप अच्छे से समझ गए, अच्छा ये तो ताज्जुब की बात है, राइट? तो बायोलॉजी में भी यही होता है कि कोई भी एक ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसका रैंक जब तक आप नहीं बताओगे तो अगला अच्छे से समझ नहीं पाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ही टैक्सॉन के 7 डिफरेंट एनिमल्स का डाइसेक्शन करके स्टडी किया है। फिर आप पूछोगे कौन सा टैक्सॉन, मैं बोलूँगा एनिमेलिया। हाँ तो सर, आप तो सर हो, आपने एमएससी बीएड किया होगा, तो आपने जूलॉजी बॉटनी में ये सारा किया होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? एक एनिमल किंगडम, उसके साथ एनिमल्स तो कोई भी पढ़ता है। लेकिन अगर मैं बताऊंगा कि एक ही जीनस के 7 एनिमल्स, एक ही जीनस, जीनस बहुत नीचे वाला लेवल होता है, ओके, सिमिलर एनिमल्स, मतलब कि जैसे कि टाइगर है, लायन, ये सारे एक ही जीनस के हैं, तो फिर आप कहोगे कि हाँ, एक ही जीनस के इतने सारे एनिमल्स का स्टडी किया, मतलब कि सर ने किसी एक स्मॉल ग्रुप का बहुत ही डीपली स्टडी किया हुआ है, तो आप समझ पाओगे, राइट? क्योंकि आप समझे, मतलब कि मुझे क्या बताना ज़रूरी है, मुझे टैक्सॉन का नाम नहीं, मुझे टैक्सॉन के नाम के साथ उसका रैंक भी बताना ज़रूरी है, राइट? अगर आपको टैक्सॉन के बारे में नहीं पता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने कार्निवोरा, या तो फिर मैंने बोल दिया एक फैलिडी ग्रुप, तो फैलिडी क्या है आपको पता ही नहीं है, राइट? तो मैंने कैसे वाले ग्रुप का स्टडी किया है, बहुत ही सिमिलर या फिर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ऊपर लेवल वाला या फिर किसी एक स्मॉल ग्रुप का डीपली स्टडी किया है, वो आप समझ नहीं पाओगे अनलेस आई से दैट फैलिडी इज एन ऑर्डर। फैलिडी क्या है? एक ऑर्डर है, सॉरी, फैमिली एक क्या है, फैमिली है, राइट? तो एक ही
एनिमल फैमिली के साथ एनिमल्स का मैंने स्टडी किया है, तो आप समझोगे कि हाँ, सर ने किसी एक स्मॉल ग्रुप का बहुत ही डीपली स्टडी किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप सिर्फ इन दो वर्ड्स के बारे में आप थोड़ा सोचते रहना, टैक्सॉन और रैंक। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए तो फिर आगे पढ़ने में मज़ा आएगी। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।